والد صاحب کا کاروبار وسیع نہ تھا، لیکن بعد میں کام چل نکلا جب ابا جان نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میرے 2 بھائی ان دنوں میٹرک کر چکے تھے، دونوں فرما بردار تھے۔ ابا جان جو حکم دیتے وہ سر تسلیم ہم کر دیتے۔ میری امی والد صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تو اس خاتون نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دی، تبھی خاندان بھر ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ تھیں بھی قابل تکریم، شریف النفس اور والد صاحب کی اطاعت گزار۔ والد صاحب بھی اپنی پہلی بیوی کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے میری امی اور بچوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے میری پہلی شریک حیات کی عزت کرنی ہے۔ سارا گھر حتیٰ کہ ان کی موت تک سبھی ان کے قدم چھوتے کہ وہ تھیں ہی اتنی محبت کرنے والی۔ امی نے سب بچوں کو ماں بن کر پالا، مجھ سے تو وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ میں بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ ان پر نچھاور تھی۔ خدا کی قدرت، میری کم سنی میں ہی میری سگی امی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو پہلے سے ہی بڑی امی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ سگی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جب گھر آتے میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا تو بہت خوش تھی۔ یہاں میری کئی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ ہم پشاور میں رہتے تھے، وہاں کالج نہیں تھا تو والد صاحب ہم کو اسلام آباد لے آئے، جہاں ان کا کاروبار تھا جو اب ترقی پر تھا۔ کالج داخلے کے بعد میں نے جانا زندگی کتنی مسرت بھری ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آزادی، کچھ پڑھائی، پھر سہیلیوں سے گپ شپ۔ یوں تو کئی سہیلیاں بن گئی، لیکن مکرمہ سے میری زیادہ دوستی تھی۔ وہ مجھ کو بتاتی کہ دنیا بہت حسین ہے، وہ ملکوں ملکوں گھوم چکی ہے۔ اس کے والد ایسے محکمے تھے کہ اس کا ان کے ساتھ کئی ملکوں میں جانا ہوتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ میں تو ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی۔ مکرمہ کہتی اگر تم گھوم پھر نہیں سکتی تو کم از کم موبائل فون ہی لے لو، جس پر گھر بیٹھے دنیا کے حسین نظارے دیکھ سکو۔ تب میری خواہش ہوتی کہ کاش میرے پاس موبائل فون ہوتا، لیکن میں تو بس اس کی آرزو ہی کر سکتی تھی۔ والد صاحب یوں تو مجھے بہت چاہتے، لیکن فون مجھ کو دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ہمارے گھر ٹی وی تک نہ تھا۔ میرے بھائیوں کے پاس فون تھے، مگر وہ میری دسترس سے باہر تھے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں اور وہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہوتے۔ ان دنوں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آیا کرتے۔ کالج جاتی تو لڑکیوں کے پاس فون دیکھ کر سوچتی یہ کوئی انوکھی چیز ہے جس تک سب کی پہنچ ہے، لیکن میری نہیں۔ میں خود کو اپنی دوستوں میں کمتر سمجھنے لگی۔ رفتہ رفتہ میرا شوق بڑھنے لگا۔ ایک دن مکرمہ کے گھر گئی تو اس نے مجھے موبائل فون پر بہت سی چیزیں دکھائیں جو میرے لیے نئی تھیں۔ یہ سب میرے لیے باعث دلچسپی ہوا۔ گھر آ کر بڑے بھائی سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہے، ایک میرے پاس نہیں۔ جب وہ اس میں سے تعلیم کے حوالے سے معلومات لیتی ہیں تو میں ان کو منہ اٹھائے دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی پلیز مجھے بھی موبائل فون لا دو۔ ابو نہیں مانیں گے، بھائی نے کہا۔ پھر جب مجھے اداس دیکھا تو کسی طرح ابو کو منا کر مجھے فون دلا دیا اور وعدہ لیا میں صرف اس کو تعلیم کے لیے استعمال کروں گی اور دیگر فضول قسم کی چیزیں دیکھنے میں وقت برباد نہ کروں۔ انہوں نے میری چند سہیلیوں کے نمبر بھی اس میں محفوظ کر دیے اور بولے بس ضروری نمبر ہی اس میں ڈالنا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ جب کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو دلچسپی ہو اور اپنے اختیار میں بھی، تب کب رہا جاتا ہے۔ اب تو کسی بات میں دل ہی نہ لگتا، پڑھائی میں بھی نہیں، کہ جس کے بہانے فون لیا تھا۔ بھائی باہر ہوتے، ابو اپنے کمرے میں سو جاتے تو رات بھر میں موبائل میں لگی رہتی۔ رات آنکھوں میں بیت جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میں بڑی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو رات بھر موبائل پر لگی رہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے موبائل لے کر تالے میں رکھ دیا۔ اب میں بے چین رہنے لگی، جیسے میری کوئی قیمتی چیز چھن گئی ہو، یہاں تک کہ ڈپریشن رہنے لگا۔ میں امی سے لڑتی اور رونے لگتی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے اس وعدے پر فون واپس کیا کہ میں رات کو نہ دیکھوں گی اور دن کو بھی بس 2-3 گھنٹے ہی دیکھوں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ فون ہاتھ میں آیا تو پھر خود پر اختیار نہ رہا۔
दोबारा से इसे देखने में जुट गई। कल इसके अंदर तो फ़ोन खोलने की इजाज़त न थी, लेकिन ऑफ पीरियड या क्लास से बाहर फ़ोन खोल सकते थे। यूँ समझ लें कि मोबाइल फ़ोन से लुत्फ़ उठाने के लिए अपने घर से बेहतर जगह और कोई न थी। एक रोज़ मुझे किसी ने खुद ज्वाइन कर लिया। न जाने मेरा नंबर कहाँ से लिया था उसने। मैंने भी तजस्सुस के मारे उसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया। देखना चाहती थी कि शायद मेरी कोई क्लास फेलो या कॉलेज की सहेली होगी। पहले लड़की बोली, पहचाना नहीं, आवाज़ से तो नहीं पहचाना। अच्छा तो फिर वीडियो कॉल करती हूँ, देखोगी तो पहचान लोगी। उसने वीडियो कॉल की, कोई अनजान चेहरा था। मैंने अब भी नहीं पहचाना। वो बोली, हम तुम्हारे मोहल्ले में नए आए हैं, मैंने तुम्हारे कॉलेज में दाखिला लिया है। तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं और मेरा भाई तुमको पहचानते हैं और रोज़ तुमको कॉलेज जाते देखते हैं। भाई? मैंने हैरत से कहा। हाँ, जो मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने आता है। लो, इनसे बात कर लो। अचानक वो एक तरफ हो गई और सामने एक खूबसूरत नौजवान की सूरत देखने लगी। नहायत वजीहा, खूबरू, ऐसे खूबसूरत चेहरे मैंने कम ही देखे थे। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि वाह, तुम तो कोई हीरो मालूम होते हो। हीरो कहो या विलन, लेकिन माँ बदौलत की कोई हीरोइन नहीं अभी तक। तो कोई हीरोइन ढूंढ लो, इसीलिए तो तुमको फ़ोन किया है। मैंने शटअप कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, जो किसी अजनबी नंबर को ज्वाइन कर लिया। मैं सोच रही थी कि फिर भी फ़ोन आ गया। मैंने कहा, तुम बहुत ढीठ हो। मैं नंबर डिलीट करने का सोच ही रही थी कि तुमने फ़ोन कर दिया। नंबर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, तुमने कह दिया फ़ोन न करना तो बस काफ़ी है। अब मैं फ़ोन न करूँगा। और ये नंबर मेरी बहन का है जो तुम्हारी मोहल्लेदार है, और मोहल्लेदार कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। दरअसल उसे कॉलेज ले जाने वाला कोई नहीं, तब मुझको फ़ोन करती है तो मैं अपनी मोटर बाइक पर उसे कॉलेज छोड़ आता हूँ और ले भी आता हूँ। तुम इसके क्या लगते हो? कज़न। मेरा घर भी ज़्यादा दूर नहीं। अगर इसे तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो मेरी इस ख्वामख्वाह की ड्यूटी से जान छूट जाएगी। ये मेरे मरहूम चचा की बेटी थी, तभी तरस खाकर ये ड्यूटी अदा कर रही थी। इस चक्कर में अपने दफ्तर में भी लेट हो जाता हूँ। तुमने तो मुझे पूरी की पूरी कहानी सुना दी। अपनी कज़न का नाम और क्लास भी बता दो, मैं उसे ढूंढ लूँगी। मगर बराए मेहरबानी दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। उसने फ़ोन बंद कर दिया। जाने क्यों मैंने उसका नंबर डिलीट न किया। ताहम 2 हफ्ते गुजर गए, उसने फ़ोन न किया। वाकई इसमें गारत है, तभी तो मुझे फ़ोन नहीं किया। मेरे दिल की खलिश बढ़ती गई, दिल को इंतज़ार सा रहने लगा। ऐ काश वो एक बार फ़ोन कर ले, कम अज़ कम उसकी कज़न का नाम तो मालूम हो जो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। फिर बेशक इस नंबर को डिलीट कर दूंगी। मैं इस लड़की से पूछना चाहती थी कि आखिर इसको मेरा नंबर किसने दिया। इंसान के अपने दिल के अंदर चोट छुपा हो तो ऐसी खुशियाँ तंग करती हैं। दरअसल अब मोबाइल से भी दिल भर जाता, ऊपर से अम्मी का बार बार टोकना और भाइयों का डर। जब वो घर में होते मैं फ़ोन को हाथ भी न लगाती, अम्मी के पास रखवा देती। बाबा जान अम्मी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अम्मी ने इनसे कहा कि मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में इसका हिस्सा इसके नाम कर दें। लड़की है, हमारे बाद किसी की मोहताज ना हो। वालिद ने अम्मी का कहा मान लिया और मेरे नाम 50 लाख रुपए जमा करवा दिए। मैं बहुत खुश हुई। चेकबुक उन्होंने अपनी अलमारी में रख ली कि जब ज़रूरत पड़ी निकलवा लेंगे। भाइयों को तो उन्होंने ट्रक लेकर दिए हुए थे जो बार बारदारी के लिए चलते थे। इसके अलावा भी जायदाद दोनों भाइयों को मिलनी थी, इसलिए वालिद ने मेरा हिस्सा नकद रुपए की सूरत में बैंक में डलवा दिया कि मुनाफा भी जमा होता रहेगा। वालिदैन को बेटों से ज़्यादा बेटियों के हाथ पीले करने की फ़िक्र होती है। बाबा जान को भी मेरी शादी की फ़िक्र थी। जब रिश्ता आया मैंने रोना शुरू कर दिया कि अभी मैं पढ़ाना चाहती हूँ, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मुझे रोते देखकर माँ बाप दोनों चुप हो गए। बाबा जान ने मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादियाँ कर दी। इन दिनों मैं सेकंड ईयर में थी जब अब्बू का इंतकाल हो गया। माँ गई तो उनकी कमी महसूस न हुई कि बड़ी माँ मौजूद थी, मगर बाप के जाने से तो मैं बिल्कुल अधूरी हो गई। सोचती थी कि अब कैसे रहूंगी। मेरे दिमाग पर इस सदमे का बहुत असर हुआ। मैं बीमार पड़ गई, 1 माह अस्पताल में रही। 1 माह बाद कॉलेज जाना शुरू किया तो उसी रात को फ़ोन की घंटी बजी।
भाई भाभीियों के साथ अपने कमरों में थे। अम्मी सो गई थी। मैंने फ़ोन उठाया, आवाज़ जानी पहचानी थी। क्या बात है, इतने दिनों से कॉलेज नहीं गई? तुमसे कहा था फ़ोन नहीं करूँगा, लेकिन आज तुमको कॉलेज जाते देखा तो रहा ना गया। तुम्हारी खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया है। मुझे माफ़ करना, मेरा वादा आइंदा फ़ोन नहीं करूँगा। बस खैरियत बता दो। बाबा जान फौत हो गए हैं और मैं बीमार थी। बेख्तियार ये जुमले मेरे मुंह से निकल गए, जैसे ही वो मेरा कोई गमगुसार हो। मुझे अफसोस है ज़ेब, उसने दुख से कहा। गोया मेरा नाम भी मालूम है। किसने मेरा नाम बताया तुमको? जिसने नंबर दिया है। किसने नंबर दिया है? उसने जिसने नाम बताया है। मजाक मत करो, मैंने कहा। मजाक की बात नहीं, लेकिन जिसने नाम बताया और नंबर दिया उसी ने वादा लिया था कि मैं तुमको उसका नाम नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है, इंसान वादा करे तो उसे वादा निभाना चाहिए। थोड़ी देर वो खामोश रहा, फिर बोला, अगर इजाज़त दो तो कभी कभी फ़ोन कर लिया करूं। इजाज़त है, ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। बाद में सोचा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। शायद इन दिनों मैं बहुत टूटी हुई थी और वाकई मुझे किसी गमगुसार, किसी बातें करने वाले की ज़रूरत थी। कोई 10 दिन बाद फिर उसका फ़ोन आ गया। इस बार जब मैंने पूछा कौन, तो जवाब मिला अहमर। उसने अपना नाम बता दिया, लेकिन अपनी कज़न का नाम नहीं बताया। अब तो मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मैंने मुकर्रमा को बताया और कहा कि जाने कौन है। उसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी। फ़ोन करता है तो परेशान होती हूँ, नहीं करता तो भी परेशान रहने लगती हूँ। क्या करूँ आखिर? वो बोली, बस इतनी सी बात, दिल बड़ा करो और उससे बात कर लिया करो। वो तुमको खा तो नहीं जाएगा? गोया मुकर्रमा ने हौसला बढ़ाकर मेरी मुश्किल हल कर दी। पहले सिर्फ ऑडियो कॉल होती थी, फिर वीडियो कॉल होने लगी। वो इस तरह बात करता जैसे वाकई कोई सच्चा दोस्त या गमगुसार हो। फिर बातों का सिलसिला दराज होने लगा। 2 मिनट की गुफ्तगू घंटों चलने लगी। बड़ी अम्मी ने महसूस किया तो कहा, बेटी ज़माना ख़राब है, तुम इतनी देर तक सहेली से बातें ना किया करो, तुम्हारे भाई बुरा मनाएंगे। एक दिन उसने कहा, तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर पहचानते हो तो जब मैं छुट्टी के बाद कॉलेज से निकलूँ तो बात कर लेना। इस तरह उसने एक रोज़ कॉलेज से घर आते हुए मुझसे बात की और ज़ेब कहकर मुखातिब किया। तो मैं ठहर गई। हमने वीडियो पर एक दूसरे को देखा हुआ था, इसीलिए पहचानने में दिक्कत ना हुई। वो अपने फ़ोटो से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। ऊंचा, लंबा कद और सुर्ख सफेद रंगत में तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। ये एक जादुई मुलाकात थी कि उसके बाद मैं अक्सर इससे मिलने लगी और इसके बगैर उदास रहने लगी। एक बार दिन बातों बातों में मैंने उसे बताया कि बाबा मेरे नाम 50 लाख रुपए कर गए हैं और मैं वो 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। इस पर वो बोला, ज़ेब भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, लगता है तुम मुझसे दिल लगी कर रही हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। इस तरह की बातें करके वो सचमुच रोने लगा। मुझे उसके रोने का बड़ा दुख पहुंचा। तभी मैंने कहा, तुम मुझसे मेरी मोहब्बत का कैसा सबूत चाहते हो? वो बोला, दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालते। मुझको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमको चाहता हूँ। काश तुम अमीर ना होती। अब मुझे तुमको हासिल करना किस कदर मुश्किल हो गया। भला तुम्हारे खानदान में मुझ मुफलिस को कौन पूछेगा। एक रात उसने फ़ोन किया, बोला, सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना है। उसके इसरार पर मैंने अम्मी से कहा कि सुबह मैं अपनी एक हमजमात सहेली के निकाह में जाऊंगी। अम्मी ने इजाज़त दे दी। मुझे खबर थी कि भाई लारी पर गए हैं, इतनी जल्द आने वाले नहीं। वो दूसरे शहर गए हुए थे। मैं कॉलेज के रास्ते से अहमर के मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वो मुझे अपने घर ले गया। उसके घर में कोई नहीं था। तन्हाई में बड़े बड़े पारसाओं के कदम डगमगा जाते हैं। जब पानी सर से गुजर जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। मैं रोने लगी तो उसने तसल्ली दी कि हर मुश्किल वक्त में वो मेरा साथ देगा। मैंने उससे कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी। उसने समझाया कि अभी घर वापस जाना होगा क्योंकि उसको अपने पैरों पर खड़े होने में वक्त लगेगा। देखो ज़ेब, मेरे पास ना तो तुम्हारे लिए दौलत है कि मैं तुम्हारा हाथ मांग लूं और ना ही वो मुझको मुफलिस इस हालत में कबूल करेंगे। हाँ, अगर तुम कुछ सरमाया ला सकती हो तो हम अपनी जन्नत भी आबाद कर लेंगे। फिर मैं तुमको दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा। मैं पहले ही उसके फरेब में आ चुकी थी। उसकी हर बात पर यकीन करती गई। घर आकर अफसरदा सी पड़ गई। अगले दिन कॉलेज भी न गई। रात को अहमद का फ़ोन आया कि अगर तुम्हें मेरा ज़रा सा भी पास है तो कल शब घर के पिछले दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करना।
और साथ में कुछ रकम भी ले लेना। इस फोन के बाद मैं सो न सकी कि क्या करूं। अगर भाइयों को पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। पता नहीं किस तरह दिन निकाला और किस तरह गुजर गया। ना चाहते हुए भी मैंने कुछ जेवरात और चेकबुक बैग में रख ली। रात 3 बजे उसके मोटरसाइकिल की महसूस आवाज सुनी तो बिस्तर से उठ बैठी। एक नज़र सोई हुई माँ पर डाली। पहले तो ख्याल आया कि ना जाऊं, फिर रसवाई पर जुदाई का खौफ गालिब आ गया और मैं जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। वो सामने ही मेरा मुंतजर था। मुझे किसी अजनबी मकान में ले आया। बोला, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अगवा का पर्चा मुझ पर हो, क्योंकि तुम्हारी सहेली मुकरमा को मालूम हो कि तुम मुझसे मिलती हो। सुबह मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहूँगा तो बेहतर होगा कि वो चला गया। रात को मैंने इस खाली मकान में तन्हा गुजारी। अगले दिन वो 12 बजे आया, साथ खाने पीने का सामान भी लाया। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद वो चला गया और फिर शाम 5 बजे आया। रात कैसे गुजरी पता ही न चला। मैं घबराती रही और वो ढारस देता रहा। सुबह फिर वो ड्यूटी पर चला गया और घर को बाहर से ताला लगा गया। अकेले वीरान घर में दिन में भी मुझे बहुत डर लगता। अगले दिन उसने बताया कि तुम्हारे भाइयों ने पर्चा नहीं करवाया। पुलिस तुम्हारी सहेली मुकरमा से पूछगिछ करना चाहती थी, मगर वो अमीर बाप की बेटी है, उसके बाप की बड़ी पोजीशन है, इसी वजह से उन्होंने तफ्तीश रोक दी। किसी मर्द पर तुम्हारे भाइयों ने शक जाहिर नहीं किया। मैंने अहमद से कहा हम अदालत में जाकर निकाह कर लेते हैं, मगर वो राजी ना हुआ। कहने लगा चंद दिन ठहरो, इस मामले को ठंडा होने दो। इस तरह करते करते महीना गुजर गया। वो रोज कोई ना कोई बहाना करके बात टाल देता। एक रोज उसने कहा, जेब क्यों ना हम बैरून मुल्क चले जाएं, मुझसे निकाह कर लोगे तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों काम कर लेते हैं, मगर बाहर जाने के लिए काफी रकम दरकार होगी। एक बार हमने रकम निकलवाई थी, अब दोबारा उसके साथ बैंक जाने से डर रही थी, क्योंकि इस तरह पकड़े जाने का खतरा था। इस काम में इसके दोस्त ने मदद की, जो इसके साथ बैंक में ही काम करता था। यूं जिस कदर उसको फायदा हो सकता था उसने ले लिया। तब उसने कहा कि जेब आज तैयार रहना, आज मेरे एक दोस्त के घर पर हमारे निकाह का इंतजाम है। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई कि चलो अब उसकी बीवी बन जाऊंगी तो महफूज हो जाऊंगी। वो मुझे लाहौर ले आया। कहने लगा यहाँ हम ज्यादा महफूज हैं। मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मुझे जिस घर में लाया जहाँ कोई औरत ना थी, वो और उसका एक दोस्त एक और शख्स को लाए जिसको वो राजा पुकार रहे थे। मुझे बताया कि राजा हमारे निकाह का इंतजाम करेगा। राजा ने अहमद से कहा शादी करने चले हो, अपना और दुल्हन का नया जोड़ा तो खरीद लो, कुछ फूल भी ले लेते हैं, मैं काजी का इंतजाम करता हूँ। तब अहमद बोला हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं। राजा ने जवाब दिया ठीक है। मुझे घर में छोड़कर वो चले गए और दरवाजे को बाहर से ताला लगा गए। सुबह के गए शाम हो गई। मैं इंतजार करते थक गई। वो नहीं आए। खुदा खुदा करके शाम को बैरूनी दरवाजा खुलने का ताला खुलने की आवाज आई तो मेरी जान में जान आई। मगर ये क्या, राजा तो अकेला आया था, उसके साथ अहमद था ना उसके दोस्त। वो कुछ घबराया हुआ था। उसका चेहरा देखकर मैं परेशान हो गई। उसने कहा अहमद निकाह के लिए वकील के पास बैठा है, मुझे तुमको लाने के लिए भेजा है, तुम पहले खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। मुझे अहमद के पास जाना है। हाँ हाँ, वहीं तो चलना है, अदालत में निकाह होगा, तुम थोड़ा सा तो खा लो। मैं बहुत अच्छे होटल से खाना लाया हूँ, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। नचार मैंने थोड़ा सा खाना खाया। अहमद के बगैर राजा को देखकर मुझे वहशत हो रही थी। ये अधेड़ उम्र का आदमी था और हुलिये से भी कुछ ठीक नहीं लगता था। मैंने जब खाना खा लिया उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और रास्ते में बताया कि दरअसल अहमद का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल है, हम अस्पताल जा रहे हैं। मैंने तुमको इसलिए फौरन नहीं बताया कि तुम खाना भी नहीं खाओगी, जबकि सुबह से तुम भूखी थी। घबराओ नहीं, अभी वो बेहोश है, कल सुबह तक होश में आ जाएगा। डॉक्टर ने तसल्ली दी। अस्पताल में वाकई वो बेहोश पड़ा था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसे इस हाल में देखकर रोने लगी। रो मत, जहाँ सबकी नजरों में आ जाओगी। अस्पताल का अमला पूछेगा कि ये कौन है। अभी घर चलो, कल सुबह फिर आ जाएंगे। रात को तुम्हें घर में अकेले रहना होगा, क्योंकि मैं तो अहमद के पास रहूंगा। मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। ठीक है, मैं तुमको अपनी खाला के घर छोड़ देता हूँ, वो और उनकी बेटियां तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मरता क्या ना करता, मैं उसके साथ चल दी। अब मैं उसके इख्तियार में थी। वो मुझे जिस घर में लाया, यहाँ की तो फजा ही कुछ और थी।
मुझ जैसी कई लड़कियां बनी संवरी बैठी थी। अहमद की परेशानी में तो मैं हवास खोए हुए थी। ये तक नहीं पूछा कि ये सब क्या है। राजा ने उधेड़ मरोरत को इशारा किया और कहा, मेरे दोस्त की अमानत है खाला, इसका ख्याल रखना। मैं सुबह आऊंगा, ये कहकर वो चला गया। वो औरत जिसको राजा ने खाला कहा था, सब लड़कियां इस तरह इससे बातें कर रही थी जैसे वो इनकी माँ हो। उसने इन लड़कियों में से एक को कहा कि इसको भी अपने साथ ले जाओ। वो मुझे अपने साथ दूसरे कमरे में ले आई। पहले दिन मैं वहां ऐसे ही रही जैसे कोई मेहमान होता है। जब रात तक राजा ना लौटा, मुझे अहमद की फिक्र सताने लगी, क्योंकि अस्पताल में बेहोशी में उसे अपनी आंखों से देखा था। मैंने इनमें से एक लड़की से पूछा कि राजा कब आएगा, तो वो बोली, अरे नादान, ये नादानी भी हमारी माँ ने भी की थी। किसी चाहने वाले के हाथों वो यहाँ पहुंचा दी गई, तो फिर कभी लौट कर न जा सकी। तुम कैसे जा सकती हो? ये बात सुनकर मेरा सर घूम गया। मैंने डरते डरते कहा, लेकिन मैं तो अहमद के साथ आई थी। राजा है, मेरा कोई वास्ता नहीं। वो तो हमारे निकाह का इंतजाम कर रहा था कि अहमद का एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में है और ये शख्स मुझे यहाँ छोड़ नहीं गया, बल्कि मालिका हाथ बेच गया है। हमको अहमद का हिस्सा पता नहीं, हम तो बस यही सीधी बात जानते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराई, जैसे मैंने कोई फजूल सी बात कहती हो। तभी दूसरी बोली, ये लड़की या तो वाकई मासूम है या फिर पागल है। अरे बेवकूफ, जिसको तूने अपना सब कुछ जान रखा है वो तो मुकर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो, इतना तो बता दो। मैंने रोते हुए कहा, ये वो जगह है जहाँ दिन में शोक और रात को रौनक होती है। ये सुनकर मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। या इलाही, ये सच कह रही हैं या मुझे जिंदगी से मायूस कर रही हैं? मैं यहाँ से जाने का सोचूं या और अहमद कैसे मगर सकता है? यही यकीनन झूठ बोल रही हैं। मुमकिन है ये सब राजा इनको सिखा कर गया हो। मुझे तो वो आदमी बुरा ही लगा था। पहली नजर में मुझे इससे खौफ आया। मैं हर वक्त रोया करती। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। खाला, जिसको सब खानम कहते थे, उसने मुझे कुछ न कहा। मैं बस इस कमरे में पड़ी रहती। कोई लड़की आती, कुछ मीठे बोल बोल कर जबरदस्ती 2-4 लकमे खिला जाती। मैंने तो नहाना, हाथ मुंह धोना तक छोड़ दिया। अलबत्ता सुबह शाम नमाज पढ़ती, दुआ करती कि मेरे लिए कोई अच्छी राह निकाल दे, क्योंकि घर का रास्ता तो मैं खो ही बैठी थी। मेरे भाई वहां घर के रास्ते पर मेरे लिए बंदूकें संभाले बैठे हुए थे। एक दिन खानम बोली, बेटी, आखिर तुम कब तक काम करोगी और जाओगी भी तो कहाँ? बेहतर है मेरी बेटी बनकर रहो। देखो ये मेरी दूसरी सब कितनी खुश हैं। जब ये यहाँ आई थी तो तुम्हारी तरह रोती थी और उदास थी, मगर अब मेरी बेटियां मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैं तुमको कोई तकलीफ ना होने दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। हमारे पास बड़े बड़े असर रसूख वाले लोग आते हैं, फिर भी तुमने घर लौट कर जाना है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम पर जुल्म नहीं करना चाहती। मेरा असूल है, मैं हर लड़की की मर्जी के मुताबिक उससे काम करवाती हूँ। तुमसे भी कोई ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो। उसने इतनी नरमी और प्यार के साथ बात की कि मैं उसके गले लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। तब उसने मुझे बहुत प्यार किया और काफी देर दिल से लगाए रखा। मैंने सोचने का वक्त मांगा, उसने दिया। मेरा दिल अक्सर दर्द से भर आता। वो मुझे कुछ न कहती और मेरे साथ मेरी जिंदगी की दास्तान छेड़ने की कोशिश भी न करती। एक दिन उस्ताद साहब ने मुझे अखबार लाकर दिखाया, जिसमें मेरे भाइयों के जेल जाने की खबर छपी थी, क्योंकि उन्होंने अहमद नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था। इस खबर में मेरा कोई जिक्र न था, बल्कि वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई। मामू ने मेरा मामला आज नहीं उछाला था, लेकिन किसी तरह उनको इल्म हो गया था कि उनकी बहन को भगा ले जाने वाला अहमद ही है, और ये बात उनको बैंक से पता चली थी, जहां मैं अहमद के साथ 3 बार रुपया निकलवाने गई थी। खानम ने अभी मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर न किया था, बल्कि मैं उसके घर को संभालती और किचन का काम देखती, लेकिन मेरी खूबसूरती मेरे लिए अजाब बन गई। लोग खानम से मेरे वजूद की फरमाइश करते और मुंह मांगे दाम देने को तैयार होते कि जो लड़की चाहती है मैं हो जाते, मगर खानम इनकार कर देती। मेरा असूल है, जो लड़की शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहती है उसको बुराई में धकेलने की बजाय इज्जत की जिंदगी गुजारने का एक मौका जरूर देती हूँ, बेशक वो किसी घर की मालिक बन जाए। इसके लिए चाहने वाले को निकाह से कबल तेरी मर्जी की कीमत मुझे बहरहाल अदा करनी पड़ती है। एक दिन खानम ने मुझसे पूछा, क्या तुम निकाह करके शराफत की जिंदगी जीना चाहती हो, क्योंकि तुम एक नवाबजादे को पसंद आ गई हो और वो तुम्हारे बदले मुझे मुंह मांगी कीमत अदा करने पर तैयार है। अलबत्ता ये अक्सर हुआ है कि लड़की को किसी ने पसंद करके खरीदा, निकाह किया, मगर 1-2 साल बाद उसका दिल भर गया तो वापस यहाँ छोड़ गया।
ایسی لڑکیاں پھر ہماری ہو جاتی ہیں اور دھو کر یہاں ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ پھر ان کو قبول نہیں کرتا۔ تب میں نے خانم سے کہا، جس نے مجھے پسند کیا ہے بہتر ہے آپ میری اس سے شادی کرا دیں، میرے بدلے اپنے دام کھڑے کر لیں، آگے میری قسمت، کیونکہ اب میں گھر نہیں جا سکتی۔ ہماری مراد برادری گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو پھر قبول نہیں کرتی۔ خانم نے ایسا ہی کیا، اس شخص سے میرا نکاح کروا کر مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ کو میری عزت کی زندگی سے ایسا ہی مطلوب تھی کہ راشد نے مجھ کو اپنی عزت بنایا تو عمر بھر ساتھ نبھایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، میں نے انہیں نہیں دی، میں نے ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاری۔ اب میرے بچے جوان ہیں، راشد کی وفات ہو چکی، سسرال میں میری عزت کی جاتی ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بھٹکی ہوئی کو مزید بھٹکنے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے۔